the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum, dear students. How are you all? Hope you all will be fine. Welcome to online classes of DPS Sahiwal. Dear student, I am your teacher Nushin Yaqub with a science lesson. After the completion of the first part of our chapter Animal World, now it's time to start the next half of the lesson. Students, we have already learned about the vertebrates in the previous lesson. So today we are going to start our next major group of animals by the name of invertebrates. And under that heading, we will inshallah today learn about the arthropods and insects. Dear students, our objective of today's lesson are that by the end of this lesson, our students will be able to define arthropods, they will be able to distinguish the animals, they will be able to tell about the important character of arthropods, and they will be able to identify the categories within this group. The content for today's lesson is definition of arthropods, habitats of arthropods, importance of arthropods, and the characteristics of insects. Dear students, in the previous sessions you have learned that animal kingdom is divided into two major groups. One by the name of vertebrates and other by the name of invertebrates. As you have learned that vertebrates are the animals with the backbone, today we are going to learn about the second major group by the name of invertebrates, which means that the animals that do not have backbone, these are the invertebrates. As you can see in that pictures कि यहाँ पर हमने कुछ insects यहाँ पर show किए हुए हैं जो कि इस चीज को डिपिक्ट कर रहे हैं कि जो क्लास इनवर्टिब्रेट्स है उसके अंदर स्पाइन यानी बैकबोन मौजूद नहीं होता. Now students will have a look at the classification of invertebrates. Invertebrates are next divided into six classes by the name of arthropods, echinoderms, cnidarians, sponges, mollusks, and worms. Out of these, today we are going to discuss one of the class with the name of arthropods. Dear students, arthropods are basically the group of animals that are found most abundantly. For about three-quarters of the all known animal species are the arthropods, and they are found on earth, land, water and underground. आप इस तस्वीर में दिखाए जाने वाले जो इंसेक्ट्स हैं उनसे ऑलरेडी वाकिफ हैं, और ये वो इंसेक्ट्स हैं जो हमारे इर्द गिर्द हमारी डेली लाइफ में मौजूद रहते हैं. और ये इंसेक्ट्स जो हैं ये सब के सब बिलोंग करते हैं क्लास आर्थ्रोपोड से. Dear students, now we'll have a look on the benefits of arthropods. ये जितने एनिमल्स यहाँ पर इस डायग्राम में हमें नजर आ रहे हैं, इस पिक्चर में हमें नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे वो एनिमल्स हैं जो कि गार्डन में बहुत सारे हेल्प करते हैं. इनमें से बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि अपने से छोटे जो पेस्ट होते हैं यानी कीड़े होते हैं जो कि डेंजरस हो सकते हैं फॉर द ट्रीज, फॉर द प्लांटेशन इन द गार्डन, ये उनको खा जाते हैं और इस तरह से ये बहुत ही हेल्प करते हैं नेचुरल इकोसिस्टम यानी आपके माहौल को नेचुरली उसके सस्टेनेबल लेवल को मेंटेन करने के लिए. अब हम देखते हैं कि आर्थ्रोपोड्स हमें किस तरह से फायदा देते हैं. दे आर मेजर सोर्स ऑफ फूड फॉर मोस्ट ऑफ अदर एनिमल्स. ठीक है, ये इंसेक्ट्स यहाँ पर आपको जो नजर आ रहे हैं, इन इंसेक्ट्स को इनसे बड़े जो स्पीशीज हैं बड़े इंसेक्ट्स खाते हैं, और ये जो है बहुत सारे बर्ड्स के, फिश के लिए, कुछ मैमल्स के लिए और इवन कुछ प्लांट्स के लिए भी फूड के तौर पर सर्व करते हैं. प्लांट्स में कुछ स्पेशल काइंड ऑफ प्लांट्स हैं, हम उन्हें इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं, जो कि इंसेक्ट्स खाकर जो है वो अपना फूड या अपनी न्यूट्रिशन जो है वो उसका इनटेक करते हैं. उसमें से एक प्लांट की एग्जांपल यहाँ रिलेट करती जाऊँ. दिस इज द पिक्चर प्लांट. ये इंशाल्लाह आप अपनी हाई क्लासेस में इसके बारे में पढ़ेंगे. इफ यू वांट टू नो अबाउट मोर आप नेट पे इसके बारे में सर्च आउट भी कर सकते हैं. नेक्स्ट इज देयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्थ्रोपोड्स. डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कि आर्थ्रोपोड्स कितनी तादाद में पाए जाते हैं, इनका नंबर.
आर्थ्रोपोड बेसिकली जो हैं आगे फर्दर इनकी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि डिवीजन होती है इनटू 5 क्लासेस बाय द नेम ऑफ इंसेक्ट्स, arachnids, crustaceans, centipedes and millipedes. Next is their number. स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने इन क्लासेस को जो कि आर्थ्रोपोड सब क्लासेस बल्कि जो आर्थ्रोपोड से बिलोंग करती हैं उनकी कुछ एग्जांपल्स रिलेट की हैं जो कि हम हमारी एवरीडे लाइफ में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस हेयर क्लास इंसेक्ट्स। इसके बीच में आपके बीटल्स, आंट्स और भी बहुत सारी स्पीशीज जो हैं वो फॉल करती हैं। नेक्स्ट कम द arachnids। इनके बीच में आपके पास एग्जांपल हैं द स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन एज दे आर शोन इन द पिक्चर्स आल्सो। नेक्स्ट कम द crustaceans। दीज आर द क्रैब्स, लॉबस्टर। क्रस्टेशियन आमतौर पर जो स्पीशीज हैं ये सी फूड के तौर पर भी सर्व करते हैं। नेक्स्ट कम द सेंटीपीड्स एंड द मिलीपेड्स। सेंटीपीड्स और मिलीपेड्स जो दोनों हैं ये आपको यहाँ पर इस डायग्राम में शो किए हैं। दे आर क्वाइट हेल्पफुल फॉर द फार्मर्स। ठीक है कि जमीन की किसी हद तक बर्विंग के लिए ये बर्विंग एक्टिविटी जो है उसके साथ इनका जो है वो लिंक होता है। Dear students, now we'll have a major look at the major group of the arthropods which are the insects, जो कि सबसे बड़ा ग्रुप है। हमने वहाँ पीछे देखा कि about 900,000 was the number. Here it is written that about 1 million species of insects have been identified on earth. यानी 1 मिलियन स्पीशीज वो हैं जिनके बारे में साइंटिस्ट को पता है। They know about their characteristic features, while probably more नंबर इज स्टिल नॉट आइडेंटिफाइड। कि काफी सारे तो अभी ऐसे हैं जो एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन उनके बारे में रिसर्च जारी है या उनके बारे में अभी डिटेल जो स्टडीज हैं वो हो रही हैं और उनको अभी फिलहाल जो है वो रिवील नहीं किया गया, वो अंडर जो है वो स्टडी है। यहाँ पर आपके पास डिफरेंट इंसेक्ट्स शो किए हैं जो कि आप अपनी एवरीडे लाइफ में देखते हैं, लाइक मॉस्किटोज, बटरफ्लाइज, देयर इज अ लेडी बर्ड, देयर इज अ हनी बी। ठीक है, ये सारे के सारे इंसेक्ट्स जो हैं वो आपकी एवरीडे लाइफ में आपके आसपास पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंसेक्ट्स जिनकी मदद से आप उनको आइडेंटिफाई करते हैं या आप किसी भी स्पीशी को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो जो आर्थ्रोपोड्स हैं उनकी कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं। Number one is that all insects have these three characters in common. Number one is that a body divided into three sections. इनकी बॉडी जो होती है हमेशा 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। One by the name of head, second mid one is the thorax and the last one is abdomen. Head front portion है, बॉडी का मिडल पोर्शन thorax कहलाता है and the ending portion or the last portion of the body is called abdomen. Then they have 3 pair of legs on their thorax, यानी इनका जो मिड रीजन है वहां से इनकी 3 पेयर ऑफ लेग प्रोट्रूड आउट होते हैं, यानी वहां पर जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद दे हैव अ 1 पेयर ऑफ एंटीना। ठीक है, एंटीना जो है ये ऑर्गन ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस है, यानी ये उनको बताता है कि इन केस ऑफ एनी डेंजर उनको किस तरह से अपने आप को सेफ्टी प्रोवाइड करनी है या क्या प्रिकॉशनरी मेजर उनको लेना है। आपने जो है वो ग्रास होपर में भी देखा होगा और कॉकरोच में तो उसके जो है वो एंटीनास बड़े प्रोमिनेंट होते हैं और आपने कभी देखा हो अगर तो आपने देखा होगा कि अगर वो सेंस कर ले कोई डेंजर तो वो उसके एंटीनास जो होते हैं दे स्टार्ट फ्लिपिंग ओवर हियर एंड देयर। ठीक है, जो उसको ये बता रहे होते हैं कि अब उसको किसी किस्म का कोई खतरा है। नाउ स्टूडेंट्स हैव अ लुक ऑन वन ऑफ द स्पीशीज फ्रॉम द क्लास इंसेक्ट। हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है एक स्पीशी को बाय द नेम ऑफ आंट। आंट की बॉडी में अगर आप देखें तो जो 3 फैक्टर्स हम पीछे बात इनकी करके आए हैं वो आपको बड़े क्लियरली नजर आएंगे। ठीक है, here is the head region जो कि फ्रंट पोर्शन है, then come the thorax जो कि मिड पोर्शन है and last is the abdomen and there are the antennas which are the organs of offense and defense जो कि उनकी मदद करते हैं to identify any sort of danger. Then ant have eyes and as well as the mandibles. मैंडिबल्स आंट के वो बॉडी पोर्शंस होते हैं यानी कि वो बॉडी का पार्ट होता है जिसकी मदद से ये इंजेक्ट करती हैं अपना सकर इनसाइड द बॉडी ऑफ एनी स्पीशी। और ये जो इंसेक्ट की क्लास हम यहाँ पर शो कर रहे हैं, दीज आर द क्रोलिंग इंसेक्ट्स व्हिच शो दैट इंसेक्ट्स आर नॉट ऑलवेज क्रॉलिंग
दे आर फ्लाइंग इंडीड, ठीक है। कि आपके पास जो है वो सिर्फ एक क्रॉलिंग इंसेक्ट की क्लास नहीं होती, इंसेक्ट्स जो हैं वो फ्लाइंग इंसेक्ट्स भी होते हैं, जिनमें यहाँ पर हमने बटरफ्लाई को डिस्कस किया हुआ है। और अगर आप देखें तो इसकी जो बेसिक बॉडी सिमेट्री है या बेसिक बॉडी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे सेम वही हैं जो पिछली डायग्राम में हमने आंट के डिस्कस किए थे। यहाँ पर जो हमारी बटरफ्लाई है शी बिलोंग्स टू अ इंसेक्ट फैमिली, और वो भी फ्लाइंग इंसेक्ट फैमिली, ठीक है। नेक्स्ट आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ इंसेक्ट्स फ्रॉम आवर डेली लाइफ, जो कि हमें नजर आ रही हैं एज यू कैन सी इन द पिक्चर्स शोन ओवर देयर। ये सारे के सारे वो इंसेक्ट्स हैं जो हमारे आसपास पाए जाते हैं एंड वी आर वेरी मच इंट्रोड्यूस टू देम। हियर आर द एग्जांपल्स, few examples by the name of beetles, ants, ladybird, flies, mosquitoes, grasshopper and a lot of number of insects जो हैं वो हमारे आसपास मौजूद होते हैं। Now dear students, it's time for assessment. Actually, question number 1 is that how many arthropods are found on earth? More than three quarters of the animal number, जो कि हमें मालूम है उसका तकरीबन जो 3/4 पोर्शन है वो हमारे पास इंसेक्ट्स क्लास का या आर्थ्रोपोड्स क्लास का बल्कि कहना चाहिए मौजूद है। Then come that into how many groups scientists have divided arthropods, कि arthropods further कितनी सब classes या सब groups में divided हैं, तो they are divided into the 5 by the name of insects, arachnids, crustaceans, centipedes and millipedes, जो कि आप पीछे already देख चुके हैं। And the last question is that how many insects have been identified, and the answer is about 1 million, कि 1 million insects हैं जिनके बारे में हमें पता है, जिनकी आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, एंड अ लॉट नंबर इज स्टिल अंडर स्टडी है जिनके बारे में अभी रिसर्च जारी है। Students, now it's time for your homework. What you have to do is that you have to draw a label diagram of an insect and ant. For this purpose, you can seek help from the previous slides. ठीक है, आप उसकी मदद से अपनी जो नोटबुक है उस पर आप लेबल डायग्राम ऑफ इंसेक्ट ड्रॉ करेंगे, जिसमें आप उसके बॉडी पार्ट्स को शो करेंगे। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज दैट यू हैव टू राइट 2 एग्जांपल फ्रॉम ईच सब ग्रुप ऑफ आर्थ्रोपोड्स। अभी आपने पीछे जो सब ग्रुप्स या क्लासेस पढ़ी हैं आर्थ्रोपोड्स की, आपने उनमें से तमाम क्लासेस की कोई सी भी 2 एग्जांपल्स जो है वो देनी है। आप चाहें तो आप जो गिवन है वो भी दे सकते हैं या आप उसको मजीद सर्च करके भी दे सकते हैं। Okay students, thank you so very much. If you have any sort of question, you can ask in WhatsApp group. And the message of the day is that stay home and stay safe. Take good care of self because you are very precious to us as well as your families. So dear students, thank you so very much. अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और अपने जो लेसन है उसको जरूर केयरफुली जो है आपने वॉच आउट करना है, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।